Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So today's lecture shall be based upon your photochemistry that is important for your bachelor's also, for your master's also, and most importantly it is important for your geochemist. So you can write down the unit as photochemistry, and the lecture number is 3. Also one more thing, in this topic we shall be covering, in today's topic actually we shall be covering photochemistry of alkenes. अब क्योंकि हमने फोटोकेमिस्ट्री के जितने भी बेसिस थे वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ द बेसिस. नाउ व्हाट इज important for us to know is that how this photochemistry is actually important or playing role in our chemical part or our chemistry part. So for that we would be considering all the organic examples. For example, for today we are talking about alkenes. In the next lecture we shall be talking about the carbonyl compounds, or in the more upcoming lectures we shall talk about the aromatic compounds as well. So today's topic is actually based upon the photochemistry of the alkenes. And one more thing also, till it is getting downloaded, when we will be doing the photochemistry of the carbonyl compounds, it would include certain reactions, and those reactions, if possible from our side, it has to be done in the live lectures. So once you all agree that we should conduct the live lectures, only then I would be able to come up with the photochemistry of the carbonyl compounds, because until and unless you are ready with the live lectures, you are ready to practice the questions with me, it is not very fruitful. So therefore I have decided that we shall be bringing that lecture, but that will be conducted in the live class. Okay, so photochemistry of alkenes, when we talk about photochemistry of alkenes, we have certain factors. What are those factors? When we talk about those factors, we can say that there are various type of reactions that are usually shown by the alkenes. First reaction that they show is cis trans isomerism. Another reaction that they show is uh, I would say dimerization. Then they show addition reaction, addition type of reaction. Also they can show cyclization. These are the type of reactions that alkenes usually prefer showing. Also, these sort of reactions are based on the most important topic, that is photosensitization. This is the need for all the above upcoming reactions or all these reactions. तो फोटोकेमिस्ट्री एल्कीन्स के लिए कौन कौन सी रिएक्शन दिखा सकती है? पहले तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकती है, डाइमराइजेशन दिखा सकती है, एडिशन रिएक्शन दिखा सकती है, और आपकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन दिखा सकती है. और इन सब का जो बेसिस होगा वो कौन होता है? फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन. फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. एक होता है आपका हायर लेवल में, एक होता है लोअर लेवल में, दोनों का हो जाता है टकराव. हायर लेवल वाला आ जाता है नीचे और लोअर लेवल वाला पहुंच जाता है ऊपर. दैट इज व्हाट फोटोसेंसिटाइजेशन इज. और फोटोसेंसिटाइजेशन के लिए वी वर हैविंग a thing known as benzophenone. We had benzophenone, which is usually referred to as photosensitizer. This we had already studied. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है PHCO and PH. ये यूजुअली अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है. देन इसके पास लाइट का इन्वॉल्वमेंट करा करके
PHCO PH को we make it travel to the singlet excited state, and once it is in singlet excited state, then we let it travel to PHCOPH into its triplet state, and this triplet state from singlet state to triplet state is known as ISC, मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड जब हमने जेबलॉन्स्की डायग्राम कवर किया था. तो नाउ कमिंग टू आवर मेजर टॉपिक ऑफ फॉर टुडे, जो कहता है क्या, दैट मीन्स द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, जिसके अंदर सबसे पहला काम हम पढ़ लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म. आइसोमर्स कौन होते हैं? जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है, 11th क्लास से पता है. तो आइसोमर्स या फिर 10th से बोलूँ मैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्पेस में डिफरेंट टाइप तरीके से अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाए जाएंगे. दोनों के पास क्या है? 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है और 2 ही हाइड्रोजन एटम है. दिस इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट इज डिफरेंट. इसका क्लोरीन एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन पर है, ऑपोजिट पर है, वेर एज यहाँ पर क्लोरीन तो सिस पोजिशन पर लगा हुआ है. सो दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म इन ब्रीफ. ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की बात होने के बाद अगर हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में फोटोकेमिस्ट्री का कहाँ काम आ रहा है, मतलब फोटोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व हो पा रही है, तो वो देखना है. तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमारी जो फोटोकेमिस्ट्री होती है फॉर एल्कीन्स, से वी हैव दिस एल्कीन एंड लेट्स टेक दिस एल्कीन ओनली, वी हैव एन एल्कीन ऑफ दिस सॉर्ट. अब ये एल्कीन यहाँ पर लग गई है, देयरफॉर एल्कीन को रिएक्ट कराने के लिए हमने पढ़ी थी रिएक्शन, 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकती हैं. तो मेजरली जो हम रिएक्शन की बात करेंगे, दिस इज नथिंग बट योर ब्रोमीन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से इट विल गेट ब्रोकन अप. तो ब्रोमीन के पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक क्लीवेज कराने के बाद अगर हम H म्यू पास कर देते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा. होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद वी वुड बी हैविंग टू ब्रोमीन रेडिकल्स, and these 2 bromine and these 2 bromine radicals will be now generated. Once these 2 bromine radicals are generated, अब यहाँ से हम आगे का काम प्रोसीड करा सकते हैं क्योंकि इनिशिएशन स्टेप हमारा हो चुका है. ऑल्सो ये वाला स्टेप जो है ये हम पहले सेंसिटाइजेशन से ऑलरेडी करके आ चुके हैं. यहाँ पे हमने सेंसिटाइजेशन का यूज किया था, ये फोटोसेंसिटाइजेशन का यूज किया था टू गेट इट कन्वर्टेड टू दिस. अगर हम इसी चीज को रिएक्ट करा देते हैं अपने supposedly this and it is in S0 state, तो अब हो जाएगा फोटोसेंसिटाइजेशन, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा ये पहुंच जाता है ट्रिपलेट स्टेट में. वंस इट इज इन ट्रिपलेट स्टेट, हम पहुंचेंगे अपने पोजीशन पर वापस, ब्रोमीन रेडिकल जहां पर था, तो लगा देते हैं इसको अपने वहां पर CH PH and PH and making it react with bromine. आफ्टर मेकिंग इट रिएक्ट विद ब्रोमीन क्या होगा, अब हमारा ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है. कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा एंड सिंगल बॉन्ड विल बी रिलीज्ड. अब सिंगल बॉन्ड रिलीज होने के बाद जैसे वी हैव सिंगल बॉन्ड आ गया एंड 1 इलेक्ट्रॉन ओवर दिस साइड, 1 इलेक्ट्रॉन ओवर दिस साइड.
ये ब्रोमीन रेडिकल आ करके जुड़ जाता है इसके साथ, लेट इट गेट अटैच्ड PHCHCH and this shall be PH and Br. This is how it somewhat looks like. ठीक है, ये दिखाने के बाद अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल बी रिमूविंग दिस ब्रोमीन रेडिकल। ब्रोमीन रेडिकल अगर हटाना है, सिंगल बॉन्ड आ गया, ब्रोमीन रेडिकल अगर हटा देते हैं यहाँ से, इफ वी टेंड टू रिमूव दिस ब्रोमीन रेडिकल, तो हमारे पास बन जाता है PH CH CH PH डबल बॉन्ड। या फिर हम क्या करें, ब्रोमीन रेडिकल के लगे रहते ही वी विल मेक दिस बॉन्ड रोटेट। विच बॉन्ड आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। इस बॉन्ड के अराउंड अगर हम रोटेशन करा देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, इस ब्रोमीन के अराउंड अगर हम रोटेशन करा देते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वेराज सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो मॉलिक्यूल पूरा रोटेट कर सकता है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल ने पूरा रोटेट कर दिया है, देयरफॉर what happens is after removal of bromine as a radical, this is also a radical, and after removal of bromine the carbon will be having a radical, the radical joins together and we have cis transformation. This is what we were calling cis trans isomerism. cis trans isomerism, but the major product, क्योंकि रोटेशन कराना भी मॉलिक्यूल के अंदर खुद में एक थोड़ी अजीब सी चीज है, therefore जो आपका cis प्रोडक्ट बनता है that is approximately 93%, और जो आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनता है वो बचा कुचा बन जाता है। So this is how this particular mechanism can work for you if you are talking in terms of cis trans isomerism. अब cis trans isomerism की बात इतनी कर ली है तो हम दूसरा टॉपिक भी शुरू कर सकते हैं। दिस वी हैव कवर्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कहता है आपका डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का खुद मतलब क्या होता है, डाइमर्स का फॉर्म होना। डाइमर्स क्या होते हैं, आपके पास कोई भी दो मॉलिक्यूल थे, दोनों को अगर आप डायरेक्टली जोड़ देते हो तो दैट फॉर्म्स डाइमर्स। अब डाइमर्स का यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, मतलब एल्कीन्स आपके डाइमर्स में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। सो वी हैव डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमराइजेशन, डाइमर्स हमने, डाइमर्स वी ऑल नो कि डाइमर्स किस तरीके के होते हैं और डाइमर्स क्या होते हैं, तो बस एल्कीन्स के साथ उन्हीं की रिएक्शन करानी है। जो कहता है क्या, इफ वी हैव डाइमर्स तो व्हाट वी कैन talk in form of dimers is, let's draw our narborane. This is our narborane. This is what we call narborane. Once we have narborane, तो हमारी जितनी भी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है सबसे पहला काम होगा वी शैल बी रिमूविंग दोज डबल बॉन्ड्स। अब क्योंकि हमें डबल बॉन्ड्स रिमूव करने हैं तो वन इलेक्ट्रॉन हियर, वन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर एंड वन हियर एंड वन हियर। पर इससे भी पहला काम, जो सब चीज़ों की हमारी बेसिस नीड थी वो थी क्या, फोटोसेंसिटाइजेशन। तो फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन के लिए व्हाट डू वी नीड टू कवर अप, वी नीड टू ब्रिंग इट टू आर ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ट्रिपलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट में लाने के लिए वी हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोसेस ऑफ दिस। सिमिलरली आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल बी यूजिंग नार्बोरेन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नार्बोरेन जो कि होगा ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, ओके। डाइमराइजेशन में नार्बोरेन आपका ट्रिपलेट स्टेट में आ चुका है। वहीं अगर हम एक और नार्बोरेन को रिएक्ट करा देते हैं, एक और नार्बोरेन को रिएक्ट करा देते हैं, क्योंकि वी आर फॉर्मिंग डाइमर्स, अगर हमें साइक्लाइजेशन करानी होती तो वी कुड हैव डायरेक्टली जॉइन दीज पॉइंट्स, क्योंकि रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं एंड थिंग्स कुड हैव बीन सॉर्टेड। बट हमें डाइमर्स बनाने, डाइमर्स बनाने मतलब एक ही मॉलिक्यूल को दो तीन चार जितने मर्जी टाइम्स जोड़ो तो डाइमर्स बनेंगे। अब दो बार जोड़ना है तो डाइमर बनेगा, तो दो बार जोड़ने के लिए हम एक ही मॉलिक्यूल को दोबारा लेकर आएंगे। दिस इज एक्चुअली इन योर ट्रांजिशन स्टेट, and the another molecule that I shall be getting is another molecule that I shall be getting is in my singlet state.
सिंगलेट एक्साइटेड, सिंगलेट स्टेट। अब वी ऑल नो सिंगलेट के स्टेट के अंदर जितनी भी हमारी स्पिन्स होती हैं दे आर इन रिवर्स ऑर्डर, जितनी भी हमारी स्पिन्स होंगी दे विल ऑलवेज बी इन रिवर्स ऑर्डर। वेयर एज अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिपलेट की, अगर हम बात करते हैं अपने ट्रिपलेट की, तो ट्रिपलेट में वी आर अवेयर कि हमारी जितनी भी स्पिन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, सेम स्पिन, तभी तो एनर्जी की पैरिटी आ सकती है। तो सेम स्पिन होने की वजह से दिस एंड दिस विल गेट बॉन्डेड, यहाँ पर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वेयरएज सेम स्पिन होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। देयरफॉर सिंस इट इज अ सिंगल बॉन्ड, हम क्या करा सकते हैं, स्पिन का इन्वर्जन करा सकते हैं। और स्पिन का इन्वर्जन का मतलब होता है क्या, अगर स्पिन इन्वर्ट करानी है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा दो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं अगर, तो व्हाट डू वी एक्चुअली गेट इज दिस, this is how we will get our dimers, this is known as dimer, डाइमर ऑफ नारबोरी। तो समझ में आया, इसमें सिर्फ स्पिन इन्वर्जन का खेल था। कैसे, पहले ट्रिपलेट में था, ट्रिपलेट में हमने पहुंचाया कैसे, वो था फोटोसेंसिटाइजेशन स्टेप से। अब ट्रिपलेट के अंदर पहुंचा तो पहुंचने के बाद स्पिन वुड बी सेम, और एक सिंगलेट से रिएक्ट कराना है अगेन फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन, तो स्पिन वुड बी डिफरेंट, एक डिफरेंट और एक सेम मैच होकर के वी हैव फॉर्म्ड अ सिंगल बॉन्ड, वेराज दोनों सेम होने की वजह से दे विल नॉट बी गेटिंग कनेक्टेड, तो हमें स्पिन इन्वर्जन कराना पड़ेगा, रोटेशन करानी पड़ेगी। रोटेशन स्पिन इन्वर्जन के बाद मॉलिक्यूल रोटेट हुआ, स्पिन इन्वर्जन हुई, एंड हेंस वी हैव फॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ आर, जिसको बोलते हैं क्या, डाइमर। और इन्हीं प्रोसेसेस को बोला जाता है क्या, डाइमराइजेशन। हेंस वी हैव कवर्ड डाइमराइजेशन एज वेल। अब आते हैं आपकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं अपनी एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए। एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन इन एल्केन्स, एडिशन इन एल्केन्स में पहला सिनेरियो ले लेते हैं 1,4 डाइईन टाइप्स। अगर हमारे पास 1,4 डाइईन रिएक्शन है तो वो कैसे प्रोसीड करेगी, तो लेट्स टेक this type of reaction 1 2 3 4 and 5, this is how our diene looks like। अब क्योंकि डाइईन बन चुका है तो हम क्या करेंगे, we shall be removing the double bonds। अब डबल बॉन्ड्स को तोड़ लेते हैं, डबल बॉन्ड्स तोड़ने के साथ ही 1 2 3 4 and 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, here we have electron and here also we have electron। since here the general formation of electrons are there, तो हम यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं एंड वी कैन मेक अ बॉन्ड ओवर हियर। तो दिस हट शेप इज समवॉट लाइक, this hut shape is somewhat like what we can say or what we can call it as to be कि यहाँ पर है आपकी 3 membered ring, whereas this is your 4 membered ring। तो can you imagine the amount of strain it would be having, since it is having large amount of strain, therefore since it is having large amount of strain, therefore what we can say is this product shall not be the major product, और ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर ये नहीं बन रहा हमारे पास, अगर ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर अभी हमने कौन कौन से बॉन्ड्स तोड़े, 1,2 एंड 4,5। ये बॉन्ड्स तोड़ने के बाद वी शैल फॉर्म 2,4 बॉन्ड। आप कहते हो 2,4 बनाना है तो बना देते हैं, ये लीजिए, दिस इज आर 2,4 बॉन्ड फॉर्मेशन, बट दिस इज आर 3 membered ring। 3 membered ring स्टेबल नहीं होती, therefore we shall try to break either this side or that side। तो डिसाइड करना पड़ेगा, अभी तो सिंस इट इज सिमेट्रिकल तो आप दोनों तरफ से कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, बट आपको बाद में डिसाइड करना पड़ेगा
कि कौन से रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एंड एज वी ऑल नो 3 डिग्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड वैसे नॉर्मल रेडिकल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए यू नीड टू ब्रेक द बॉन्ड। वंस वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, अब बॉन्ड ब्रेक करना है 2,3 ब्रेक एंड दिस वाज फॉर्म। 2,3 को अगर तोड़ दिया जाए तो इट शैल लुक लाइक दिस। वी हैव दिस ओवर हियर, we have things like this. Now since we have things like this, therefore what we can do is we can join our this bond 1,2 bond join। 1,2 को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये लीजिए ज्वाइन कर दिया। अब बचा आपका 3,5, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए 1 like this it shall be joined। So we shall be getting what sort of product is this? This is our allylic propanol। It is quite stable and actually it is more stable than this product। ठीक है, सो देयरफॉर अगर आपको साइक्लाइजेशन अगर आपको एडिशन रिएक्शन करानी है 1,4-डाइईन्स के ऊपर, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन शुड यू प्रोसीड विद? यू शुड प्रोसीड विद द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स? पहले यू शैल बी ब्रेकिंग डाउन ऑल दीज बॉन्ड्स। 1,2 तोड़ना है और 4,5 तोड़ना है। दोनों तोड़ने के बाद आपको 2,4 का फॉर्मेशन करानी है। सेम सीक्वेंस आप याद करोगे, इट विल बी हेल्पफुल इन एवरी केस। 2,4 की फॉर्मेशन कराने के बाद यू कैन ब्रेक द ईदर साइड, या तो 3,4 या फिर 2,3, कुछ भी तोड़ सकते हो। रिमेंबर, अगर सिमेट्रिकल है तो कुछ भी, और सिमेट्रिकल नहीं है तो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हुए यू नीड टू ब्रेक। वंस यू हैव डिसाइडेड विच टू ब्रेक, देयरफॉर आप 1,2 का फॉर्मेशन दोबारा कराओगे और जो आपका बच जाएगा दैट ऑल्सो विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर आपका बनता है क्या? यहाँ पर आपका बनता है क्या? साइक्लोप्रोपेनॉल। Here the formation of cyclopropane occurs here। अगर आपको सेम रिएक्शन करने के लिए बोला जाए कि आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं विद दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये भी 1,4-डाइईन वाला ही केस है। with this, so you need to tell the products। ठीक है, सेम रिएक्शन है, कह सकते हो Hg वेपर्स के अंदर आपकी सेम रिएक्शन है, Hmu के साथ रिएक्ट करा दिया गया है। तो यू नीड टू टेल हाउ विल द थिंग्स प्रोसीड। You can note down your homework, then we shall move on to the 1,5-dienes। Coming on to the next, we have 1,5-dienes। 1,5-dienes क्या कहती है? 1,5-dienes के लिए let's have this 1 2 3 4 5 6 7 8 1,5-dienes। This is how 1,5-dienes looks like। आपने सबसे पहला काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने डबल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है। हियर 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 एंड हियर। अब इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया है तो अगले स्टेप में इन बॉन्ड्स को ज्वाइन कर दो। मेजर हियर दिस विल बी द फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका बॉन्ड है, यहाँ पर आपका बॉन्ड है। अगेन दूसरे स्टेप में दिस विल बी द फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द रेडिकल्स। तो पहले आपका जनरेशन होता है बाई रेडिकल का, बाई रेडिकल के जनरेशन के बाद आपका बनता है ट्राईसाइक्लो कंपाउंड। Similarly, you can try question like
Like this you can try this particular question. पहला काम क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ब्रेकिंग के बाद जनरेशन हो जाएगा यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, दे विल डायरेक्टली ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट देखो तो सही, दिस इज फोर मेंबर रिंग, फोर मेंबर रिंग आर मोस्टली अनस्टेबल, तो आपको ये ज्वाइन नहीं करना। वंस यू आर नॉट ज्वाइनिंग दिस, तो क्या ज्वाइन करें, आप इसको इससे ज्वाइन कर लो। 5 मेंबर की रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, प्रेफरेबली 6 मेंबर की रिंग से भी, ठीक है। तो दैट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि 5 मेंबर की रिंग बन रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज लेफ्ट, जस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, और फिर बच्चे के बॉन्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस शैल बी योर होमवर्क। नाउ since we have covered addition in 1,4 and 1,5, similarly goes for 1,6 addition reactions also. So that also it will be somewhat like, if I consider 1,6 dienes reaction, the same thing will go for 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1,6 diene reaction. So what will happen? We will break this bond, we will break this bond. After breaking these bond, we shall form the ring over here and we shall form the bond over here. तो यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन रही है, सो इट इज क्वाइट स्टेबल, देयरफॉर वी कैन फॉर्म द बॉन्ड्स। तो बस उस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यू नीड टू फोकस। एडिशन रिएक्शन वी हैव डन नाउ। नाउ कमिंग टू द साइक्लाइजेशन रिएक्शन। अब साइक्लाइजेशन क्या हो रहा है, मतलब जिस भी चीज में, मतलब जब भी आप डबल बॉन्ड का ब्रेक कर रहे हो एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स फॉर्म होने के बाद अब दूसरा काम जो आपका आ रहा है वो क्या होगा, आपको सिर्फ साइकिल क्रिएट करनी है। बट वाइल फॉर्मिंग द साइकिल, व्हाट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट, जो आपकी साइकिल बन रही है वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। तो जैसे हमने देखा 4 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की रिंग, दोनों का साथ में डाइमर बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, देयरफॉर वी मूव्ड ऑन टू व्हाट, एलाइलिक प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन सॉरी। तो बस उसी चीज का ध्यान रखना है, वेदर आई हैव रिटन साइक्लो और नॉट। हाँ, सो इन साइक्लाइजेशन वी कैन कंसिडर आर फर्दर रिएक्शन, दिस इज आर फोर्थ पार्ट जो कहती है साइक्लाइजेशन। In cyclization, what we need to focus upon is that only the breaking of the bonds and forming of the new bonds. Like if we consider the case of narborane, कुछ नहीं करना, just we'll break it. Here we have electron and here we have electron. ध्यान रखना, अगर डाइमर की बात करेंगे तो ओनली वन बॉन्ड, साइक्लाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करानी है, मॉलिक्यूल के अंदर ही, बाहर से कुछ और नहीं आ रहा है। देयरफॉर आप क्या कर सकते हो, दिस इज हैपनिंग, देयरफॉर हम बना सकते हैं अपने नए बॉन्ड्स। नए बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, दिस एंड दिस गेटिंग जॉइंट, तो एक नया बॉन्ड ये बना है, दिस एंड दिस गेटिंग जॉइंट, तो आपका दूसरा नया बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी दिस, और एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। सो दिस इज हाउ साइक्लाइजेशन एक्चुअली लुक्स लाइक ऑफ नार्बोरिन। अगर हम साइक्लाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम बेरिलीन का केस कैसे छोड़ सकते हैं। बेरिलीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज दैट कि बेरिलीन का साइक्लाइजेशन कैसे करेंगे, बेरिलीन इज इंपॉर्टेंट। तो this is how beryllium looks like. So I can say 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हम इन दोनों का तोड़ना चाहें, आप इन दोनों का तोड़ सकते हो। आई प्रेफर ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स, सो वाई नॉट ब्रेकिंग दीज बॉन्ड्स। सो we can break the bond. We are breaking which bond? We are breaking this bond and we are breaking this bond. So on breaking these bonds, what do we get? We get like this we are getting. We have broken how many bonds? 1, 2 bond, and we have broken 4, 5 bonds. After breaking these bonds, let's form another bond. जो कहता है क्या? 2, 4 अभी सीख कर आए हैं। 2, 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या करना है? We need to just join it. Join what? We need to just join this with this. This is the formation of new
2,4 बॉन्ड. अब 2,4 बॉन्ड बनने के बाद what are we left with? We are left with 1 and 5. Since we are left with 1,5, therefore we need to again break a bond जो कहता है 2,3 के साथ बॉन्ड ब्रेक करो. 2,3 के साथ अगर बॉन्ड ब्रेकिंग की बात आती है नेक्स्ट में कर लेते हैं. 2,3 के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग की बात चल रही है. हाँ, तो वी हैव here it is our 2,3, therefore we can erase our 2,3 bond. 2,3 bond break हो गया and rest everything has to be made as it is. Also this was our bond. How come it is like this? But here we have radical and here we have radical, here we have radical and here we have radical. Now since we have broken 2,3 bond, after breaking 2,3 bond, what we can do is we can form a new bond जो कहता है क्या 3,5 bond का formation. 3,5 तो ये रहे and hence we can form these bond. 3,5 का bond formation. This is 3 and sorry this is 3 and this is 5. 3,5 bond form. Like this the things appear. पर radical तो अभी यहाँ पर भी बाकी है, तो यहाँ का radical बचाने के लिए what we can do is we can directly join this new bond 1,2 bond formed. See how easily we have covered the case of berylline जिसमें same steps follow किए 1, 2, 4, 5 मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड थे पहले उनको ब्रेक करना है. ब्रेक करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, यू नीड टू फॉर्म 2,4 बॉन्ड. 2,4 बॉन्ड बनाने के बाद आपको 2,3 या 3,4 तोड़ना रहता है. सिंस हियर वी वर हैविंग 2,3 मोर प्रेफरेबली ब्रोकन, तो हमने 2,3 तोड़ दिया और उसके बाद नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ 3,5. 3,5 बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद लास्ट में क्या करते हैं 1,2 वी जस्ट पॉसिबली ड्रॉ इट. तो बस इसको ड्रॉ करने के बाद वी गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ आर्स जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Like this it is formed somewhat. One, two. Like this it is formed. 1, 2, 3, 5, 7. So this was your case for berylline. हमेशा चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है क्या, that how are bond breaking and how are bond forming. If you will be leaving your answer up till here as well, so it is not wrong, but this is how generally the state looks like. So if you are leaving it over there also it is fine, but थोड़ा arrange करके दिखा दोगे तो that will be good. This is our product. So coming back to our that slide जहाँ पर हमने सारी reactions लिखी थी, यहाँ पर से we can pick this reactions of R that we have covered cyclization reaction also. तो आज की क्लास में I hope photochemical reactions
एल्कीन्स की सारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जिसके अंदर सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म आती है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने के बाद। डाइमराइजेशन आती है, दो मॉलिक्यूल्स को आपको डाइमर्स के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, एक की स्पिन डिफरेंट होती है तो रोटेशन या फिर स्पिन इन्वर्जन कराना पड़ेगा। देन वी हैव एडिशन टाइप, जिसके अंदर 1,4, 1,5 एंड 1,6 सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस होती है, 1,7 भी हो सकती है। देन वी हैव साइक्लाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम अभी करके आए हैं रिसेंटली, जो कहता है क्या, साइक्लाइजेशन में वी हैव कवर्ड टू, वन इज नार्बोरिन एंड अनदर वन इज बेरिलीन। तो इसमें शायद आपको होमवर्क नहीं मिला है, तो वी कैन गिव और वी कैन असाइन यू अ होमवर्क एज वेल, जो कहता है साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट यू नीड टू ड्रॉ। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड सॉरी, this was all from my side for today, and tomorrow we shall meet again. I guess a small portion is left about the aromaticity, oh sorry, about the aromatic compounds in photochemistry, and one more topic was there, okay, yeah, carbonyl compound. So dono hi we can consider and we can do again, and that's it for today. Thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.